Yes, good evening, everyone. So, today uh, we want to discuss something more about the in because see, GS 123 is almost similar except GS 4. So, GS 4 strategy we have discussed in two webinars already. Last webinar we have discussed some more things about GS 1, 2, 3, 4 in general, that how much time we have to give in various questions and how to attempt it. So you have learned the way in which you can maximize your score through attempting the question in a priority manner. Coming to the next part today. Today we will be discussing something more about GS 123 paper, in which the various strategies to implement. If you implement those strategies, you can increase your marks in each and every question again. Okay, so first of all, let us discuss the first thing, two things I want to discuss with you. Considering what toppers strategy was uh, for, during when the topper topped the exam. Okay, so uh, the first the strategy, like many people will tell you that either or you have some certain doubts that shall we write the answers with introduction or conclusion, is it must for each and every question, or shall we do it directly? Okay, this is one question. Another question is that whether we can write in point format each and every question, or you can shift to the paragraph format, or both. Okay, this is some of the general questions which most of you will be having during your preparation. And then those who are writing for the first time will definitely have this question. And seeing the various strategies of toppers also, you may doubt that sometimes, which is good. And there are new ways of going beyond the point wise and drawing the diagram and answering the question, right? Well, without writing anything much content, just a diagram, and you are answering the question. Let us discuss on that also. Okay, let's first talk about the topper's view on this thing. Okay, uh you know everyone knows about Tina Darby and the Ira single. Okay, so Tina Darby, during her preparation and finally when she topped the examination, she she told in her blog that wrote each and every question in the paragraph format, and bearing very few questions in the point format. Most of the questions she wrote in the paragraph format. Okay. On the other hand, uh, Ira Singhal told that she wrote, because of her slow handwriting. Because she was, that she was in the PH category also, and she was already qualified the examination in IRS, and she have to write that she wrote the papers, and because she was actually the slow writer, and because of which many questions, if she writes in a paragraph format, most of the questions will be left unattended. So therefore, she told in her blog directly, and that she wrote all the questions in the point format, right? And introduction and conclusion were, most of the questions she did not write. Why? Because she had lesser time. She was a slow writer. Hiranabi was fast writer. She wrote introduction, conclusion for each and every question, and all questions she wrote in the paragraph format. Now you tell what is right. Both actually topped the examination in the respective years. Which is right, or both are right, or there is some middle path which we can follow. Anything you want to say in this? Anyone? Yeah, depends on writing speed. Yes, this is one point. Content is also important, right? We have to follow what is best for us, right? Exactly. So now you are actually segregating these things into based on the personality type. Okay, let's see. See, actually, the UPSC
does not ask you to write in point format or paragraph format. It is the coachings here in Rajendra Nagar, Mukherjee Nagar, they are telling you to write in the point format. The paragraph format won't be checked, and it's very difficult to see what you've written. Many things they will be telling you. But actually, in the UPSC, there is no rules. Okay, you make your own rules based on your performance, based on your strength, right? So actually, in general, there is no rule, right? What to write in point wise or paragraph, both are accepted in the examination, right? But due to the pressure of the coaching institutes, due to the pressure of your peer group, most of the people here and across the coachings will write in the point format in each and every question, right? So let's talk about this also. That is it good or wrong, or what is right practice for you? Basically, it depends on the individual level, right? Like for example, I told already that Tina Dabi was slow writer, sorry, fast writer. Therefore, she wrote all in paragraph format and underlined each and every whatever the keywords were there. Tina Dabi, on the other hand, the Ira Singhal, she was a slow writer, so therefore she wrote in the point format. But let's see, we are here, we have to, we don't know that what is accepted in the examination in a in a much better way or whatever. So let's take the middle path or take actually both of them. Okay, so let's see how we are going to go. First of all, let's see that if you are writing the answer in the paragraph format, so basically you will start in the paragraph format, introduction, right? Then followed by what is asked. You will underline or you can put a subheading. Then you write in the point wise. Then you conclude. In the conclusion, again, you will go for the paragraph format. This is the basic thing which each one of you are doing, right? Now, let's see that this is the way you are going to proceed. But in many questions, the requirement may be that you can write in the paragraph format also. For example, in the question of ethics, right? In the question of ethics, especially the theory part, most of the questions can be attempted in the paragraph format also. In the case studies also, you can write many of the questions or the subparts in paragraph format also. But always try to underline the keywords, because then that you are showing the examiner that what you want to expose. See, the examiner will have always a lesser time to check the copies, and the keywords which you're underlying will help them to know that okay, you want to expose your answer in the form of keywords. So therefore, you read these keywords and in a very short span of time, and therefore he can give you more marks. Okay, so try to understand that the basic concept of these are the visibility. See, the your more the answers of yours are visible to the examiner, more marks you can achieve, right? The lesser the visibility, without underlining full paragraphs, not changing the paragraph also, writing the in a monotonous way, you're not even changing the paragraph for the introduction, main body, and the conclusion. Again, the message will go to the examiner that okay, he is not matlab, a very monotonous guy, and you have not exposed your answer also, right? Uh, okay, and it is not very clear that what you want to what you want to answer actually. Okay, all these will give a uh, direction to the examiner that you are not very clear about the answer. Okay, so he may give you lesser marks. So in if you're writing the paragraph also, you have to write shorter paragraphs, not longer paragraphs. That means 2 3 statements can become one paragraph. And introduction. Now let us discuss about how much we have to write introduction. Many people will, see already discussed that you have just 2 pages and 3 pages, 150 marker, 150 words and 250 words, and you have lesser time. Okay, to write no, the whole question. Already we have discussed the strategy about the prioritizing the answer. So when you're going to attempt a question of 10 marker or 20 mark or 15 marker, you have to be very sure that what you are going to write, because you see in many cases, if you're going to attempt the question, you are writing the introduction should not be too long. Okay, why? Because already it's just introducing the topic, not actually addressing the question, right? So one sentence maximum of maximum 2 sentences, that's all, right? It will be around 10 to 15% of the space.
And same goes with the conclusion. One to two statements maximum in the conclusion, or 10 to 15% of the space will go to the conclusion. Total 30% will go almost maximum to the introduction conclusion, and 70% will be the content, including whatever you want to write. Okay, so this is the right strategy, one thing. However, let's see, you are writing the introduction, you have just written one or two sentences explaining the keywords or whatever as per the question asked. Then you are writing the answer. Try, see, always try to use the words from the question into the answer. Okay, this is one of the another strategy. Why? If you are not using the directly what is written in the question in the answer, the examiner will feel that okay, you have answered something else. For example, if the question is analyze the uh, like, for example, why the what are the reasons for the increase of rates of food grains, as something like that, है ना? Or what are the reasons for the increase of ये, food grains, for example, and you're writing the analysis, analyzing the food grain inflation. Okay. See, almost it means the same thing. Almost it means the same thing. But still, it's always better to use the words from the question into the answer, so that examiner will know that you are actually addressing what is asked. You are not slightly deviated also. Okay. Any question, there are many questions in which you are actually changing the words. Right? You are changing the words, you are writing in your own words. Right? The question. But actually the subheading or the one or two lines if you're writing, assure that, make sure that those lines should be the same, that means from the question, from taken from the question itself, and underline it, so that examiner will know okay, you are writing from now, the body of the answer starts and the actual answer will start from here. ठीक है? Got my point? So this is one of the very good strategy, that if you are writing the different words from the same question, it will the examiner will seem that it is deviated answer, and obviously the deviated answer may not get good marks. Okay, so directly write, take the words from the question and write the in the in the body or the heading or subheading or underlining, and then you exactly address the question. This also goes with the essay paper also. Essay also, keep writing the words taken from the question in heading or introduction. Yes, yes. Or even you can write the, obviously I told you can use the words taken from the questions into your body, answers body, right? Even in the introduction conclusion also, it depends what type of question is asked, but don't make it so much repetitive. Okay, that is the question, that is the thing. Okay, so this way you can do. Got my point? So I was telling about the essay. So essay also, it is the same thing. You have to use the word from the essay into the question. Sometimes next time I will discuss more about essay also. Right? It will be, I think it will be also longer class. So we'll discuss more about essay, that what is the way to, from the very beginning, that from starting the preparation of essay till to the end. Okay, till that, how to do, what to do, and how to conclude, and completing the essay, the examination पूरा end to end discuss करेंगे. Okay, so now use the words from the question into your answer including essay, right? Then another thing, so we're talking about that paragraph and the point wise. Let's talk some more thing about this. See, there are two things. Some questions you know well. I told which you will be doing the which you will be doing in the beginning itself. First hour, second hour, mein, you will be doing that questions in the beginning. Those who have missed the class from who have joined just recently, today, yesterday, should if they are the links of the three webinars you have missed already given in the uh, already it is there in the this one channel, CMP core private channel. It's there, you just watch it, then you will be able to get my point very well. Okay, and in case any doubt, just give me a call. Okay, or message or discuss with me, कोई दिक्कत नहीं होगी. Okay, so I was telling that ki, let's talk about the paragraph and point. See, now I told already, when you want to expose your answer, when you want to score your
score more marks in that answer because you know it well. Already you are prioritizing. So that means the first hour or maybe in the second hour also, 2 hours. Fully, you know the answer well. Exposing your answer, draw diagrams and all. You can do it uh, by writing in point format and underlining the keywords also. You can use the diagrams also. ठीक है, here your answer will be exposed. Examiner will know, okay, you have addressed the question as it is what is asked, so clearly, so efficiently. ठीक है, नंबर ज्यादा ले लेंगे आप. In the last hour I told there will be lesser known questions, less known maybe last half an hour, कम आता होगा, है ना. There if you are going to write in points, you are exposing yourself that you do not know the answer, right. बहुत expose हो जाएगा. Maybe you can underline, you may underline the wrong keywords. Keywords wrong underline हो गया, then again this is actually the another problem, right. So wrong keyword, है ना, analyzing the question, or in the end you are writing it is last half an hour, that means the question is lesson known to you, kam aata hai, then resulting in you will be getting, if you're exposing your answer, that means the examiner will know, okay, he doesn't know this answer, so this may lead to obviously the lesser marks. Okay, so what to do, convert those paragraph or whatever you want to write into the paragraph format. ठीक है, so paragraph format में you may move slowly also. If you are not very sure of some keywords, don't underline, leave it as it is, write something, right. I told already, because you have lesser time, less marks. Okay, so you have to just attempt those in lesser time. Okay, got my point. So lesser time में करना है तो you can write in paragraph format, write in some other way, so that it will be uh, not some other basic, the paragraph format only, with less exposure to your answer, because it's just compromised answer, you do not know much about it. So it may be in very few questions in the end, 3 4 questions, it depends, like how much you know, how much you do not know. Okay, so इसका बहुत ध्यान रखना है ये. This will help you to, है ना, gain more marks by exposing your known answer well, and this will help you to again score more in lesser known answer by by exposing it less. ठीक है, क्योंकि लास्ट में एग्जामिनर में बी इन हरी और मे बी whatever things are there, so you can prevent the your marks, your answer, not so good answer will be lesser exposed, resulting in better marks. Okay, because कुछ गलत लिख दिया and you actually underline it, so obviously the examiner देखेगा तो गलत लिखा हुआ है, तो then obviously the marks will be less. Okay, got my point. So ये इसका बैलेंस लेके चलना है. ठीक है, द पॉइंट वाइज द पैराग्राफ वाइज, है ना, एक्सपोज किसको करना है, किसको नहीं करना है, और डायग्राम्स एंड ऑल. और एक और पॉइंट आपको बता दें, most of the questions, most of the students nowadays, because of the various coaching institutes, they will show the copies, the examiner, the, the students are writing like this. So basically what they're doing, students are doing, they are writing the answer without much content, only the diagrams are there. That means a flow chart में explain हो गया पूरा आंसर. ठीक है, फ्लो चार्ट एक्सप्लेन हो गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट हो गए, जस्ट हेडिंग एंड फ्लो चार्ट और एंड डायग्राम्स. if you count the words, see, diagram is basically to supplement your answer, not to substitute your answer. Always remember, diagram क्या करता है, they will help you to gain marks, है ना. The main, you have to write something, the write up should be there. With that write up, the diagram will be supportive, so that you gain more marks. But if you are doing no write up or very less write up, not even fulfilling the 150 words or 250 words, just some 50 60 words you are writing, and just drawing the diagram, and based on diagram you are explaining, मतलब diagram में explain हो रहा है फ्लो चार्ट फॉर्म में. अंडरस्टैंड दैट दिस कैन बी डन टू वेरी फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी लिख देना है, टाइम भी कम हो सकता है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं. पर इफ यू आर डूइंग इट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, देन इट विल बी डिजास्टर्स. देखिए, एग्जामिनर वोंट लाइक द सेम टेम्पलेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पिछले बता चुका हूँ, डोंट यूज द सेम टेम्पलेट एवरीवेयर, ईच एवरी क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ लेसर टाइम एंड बिकॉज ऑफ योर कि यार मुझे करना ही है, मैं करना चाहता हूँ, एंड मे बी यू आर प्रिपेयर्ड इन दिस क्वेश्चन इन वेरी गुड फ्लो फ्लो चार्ट वे, सो वो कर सकते हो, पर नॉट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई टेल यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस टॉपर, दैट दैट पर्सन आईआरएस, क्या नाम था, ठीक है, सो ही एक्चुअली रोड लाइक दिस.
उसके बाद many of the candidates wrote the similar way. Yeah, it should not done in each and every question, right? So so बहुत लोग ऐसा किए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इवन मेरे स्टूडेंट्स भी किए. आई टोल्ड देम नॉट टू डू दैट. वन ऑफ देम इज एक्चुअली सिटिंग हियर आल्सो, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस बैच आल्सो. ठीक है, इन्हें भी वैसे ही किया, सेम चीज. सबके नंबर कम हो गए, सबके जीएस में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who got lesser marks in GS because of this reason, because everybody wrote in flowchart format. वो नहीं एक्सेप्टेबल है. ठीक है, वन और टू क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन कैन बी डन डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मच टाइम यू हैव एंड what is the question and how you're going to address it effectively. Not every question should be done like this. And ये तो, see, those people who are there, those people who are checking the copy, they are actually 60 plus, right? Retired professors, maybe retired civil servants, maybe 55 to 60 age group. So if those fellows, they are basically those professors who are very much into the literature part, स्टोरीज एंड ऑल दोस थिंग्स देयर. अब वो देख रहे हैं फ्लो चार्ट एंड फॉर्मेट, उनको कितना बुरा लगेगा, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आएगा व्हाट दे आर, बिकॉज वो दे आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल एंड यू आर फ्रॉम द न्यू स्कूल की वी हैव टू, यू आर फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, वो लोग नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो उसमें आपको नंबर में लेने में दिक्कत हो सकती है. ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए. सी, ऑलवेज थिंक अबाउट द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर कॉपी, डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ. कैसे? एक पहला चीज क्या होता है, जैसे मैं आपके यहाँ कोई आपके मेहमान आता है, तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? Some guests are there, you will arrange the थाली, है ना, प्रॉपर नाइसली प्लेट ये सब. ठीक है, एक एक ये वे होता है, तो कोई खाएगा उसको अच्छा लगेगा. एक और तरीका है कि जब पेट में सब जाके मिलना ही है, तो हम ऐसे मिला जुला के दे देंगे, खा लेंगे. ठीक है, विच इज गुड. प्रॉपरली अरेंज थाली, भले ही पेट में जाके सब मिल जाता है. वैसे ही इन द कॉपी, और कॉपी शुड बी लाइक सब कुछ अलग अलग होना चाहिए. इंट्रोडक्शन अलग, बॉडी अलग, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स, मे बी पॉइंट्स, मे बी पैराग्राफ्स, देन कंक्लूजन, देन डायग्राम्स, मेनी थिंग्स कैन बी देयर. ऐसा ना हो कि सब मिक्सअप करके कूड़ा करके डाल दिया. डायग्राम कहीं, कहाँ इंट्रोडक्शन है, कहाँ बॉडी है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है. नॉट लाइक दैट. ओके, गॉट माय पॉइंट ना? तो ये बहुत, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी चीज ना अंधाधुंध नहीं करना है. ओके, नाउ एक और पॉइंट बता देता हूँ इसके बाद. आज का भी जो है ना सेशन, इसमें इफ यू यूटिलाइज ऑल दिस पॉइंट्स, और यू में राइट, आप लिख सकते हो उसको, सो दैट इट विल हेल्प यू इन एक्चुअल आंसर राइटिंग, जो भी आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर मतलब एग्जाम में या आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा. अनदर थिंग इज दैट, और लाइक आई टोल्ड ना, कि राइट द क्वेश्चन इन द प्रायोरिटी मैनर. उसी तरह यू शुड राइट द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जो भी पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट शुड बी इन द प्रायोरिटाइज्ड मैनर. हाउ? Like for example, if the question is that what are the long term, short term solutions for the flood, अभी जो फ्लड आया दिल्ली में, मे बी अर्बन फ्लड वॉट एवर, तो फ्लड का क्या सोल्यूशन है? ऐसे अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपसे, एग्जाम में पूछेंगे बहुत चांसेस. सो सोल्यूशन में अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर कलेक्टर, आप कलेक्टर किस डिस्ट्रिक्ट में, और फ्लड आ गया, इन एनी वेज फ्लड आ गया, सो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज? तो प्रायोरिटीज का मतलब क्या है? यू विल बी राइटिंग इन द नंबर वन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट यू विल वहां से लोगों को रेस्क्यू करेंगे. देन सेकंड, वहां पे आप जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे, मेडिसिन की, फूड, और उनको शेल्टर देंगे. फिर यू विल डू, है ना, और वेरियस मेजर्स, कि जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीआरपीएफ, इन सब का मदद लेके बाकी नेक्स्ट काम करेंगे. ठीक है, मे बी लॉन्ग टर्म मैसेज में क्या करेंगे, यू विल गो फॉर द एम्बैंकमेंट ऑफ द रिवर्स, है ना, फ्लड कंट्रोल मेजर्स आप लेंगे. ठीक है, ये. बट इफ यू राइट द फर्स्ट पॉइंट में आप लिख दें एम्बैंकमेंट बनाऊंगा, so it will seems that ki you do not know the priority is what? Priority is that you have to do the first thing first, कि भाई बाढ़ आ गया है, तो पहले लोगों को रेस्क्यू कराओ. बट इफ यू आर डूइंग, नहीं, पहले एम्बैंकमेंट कराएंगे, फिर तक कि बाढ़ का पानी वहां रुक जाए, फिर कुछ, तो दिस वे इट वोंट वर्क. सो प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स आल्सो. ठीक है, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. रेस्ट पॉइंट में भी हियर एंड देयर, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट पहला पॉइंट तो डेफिनेटली लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. No, it should not be the least important point, should be the first, and most important point may be in the last. So, so it will reflect your how you're going to prioritize things in your life. If you're, even if you're going for collector, how you're going to prioritize. So, इसलिए always ensure that the points which you'll write will be in the priority manner. If not, at least first and second, third, अगर हो सकता है.
पर पहला तो जरूर हो, लीस्ट इंपॉर्टेंट शुड नॉट बी द फर्स्ट वन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ऑलरेडी टोल्ड दैट कि एक आप डायग्राम एंड ऑल, इट डिपेंड्स दैट वेयर यू कैन पुट डायग्राम। फॉर एग्जांपल GS1 ज्योग्राफी, if the question is such that you can write diagram, you can draw diagram, definitely you should draw। अब फालतू का डायग्राम नहीं डालना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग द डायग्राम इनटू द क्वेश्चन यू आर ड्राइंग एंड, है ना, फिलिंग द होल स्पेस। आपको बहुत सारा कंटेंट पता है, बहुत लिखना है, तो डायग्राम से स्पेस फिल मत करिए। द मार्क्स विल बी गिवन मोर ऑन राइट अप, डायग्राम कैन बी द सप्लीमेंट्री पार्ट। तो यू कैन राइट समथिंग एंड राइट में छोटा छोटा स्पेस छोड़ के वहां डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द नॉर्थ, लाइक फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के बारे में बताना है, तो नो नीड टू ड्रॉ द फुल इंडिया मैप, जस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैप ड्रॉ करिए, तमिलनाडु, केरला, व्हाटएवर द शो, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन। इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चर एंड ऑल, देन नो नीड टू ड्रॉ फॉर द होल ऑफ इंडिया, जस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड एक्सप्लेन, सो दैट इट विल बी मोर लेस लेस स्पेस लेगा एंड मोर इंफॉर्मेशन विल बी कन्वेड। ठीक है, एंड someone asked like how many points, see it depends on how much points you know। if you have 250 marker and you know just 2 points, तो क्या करोगे, how will it go, फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, if you for 250 words you know some 7 points 8 points, you can extend it to 10 points भी बढ़ा सकते हो। आपको दो ही पॉइंट्स बताया तो try to उसको भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दो, दो का चार बना लो, right, so that it looks like 4 points। if it is not possible also, ये चलो पॉसिबल भी है, you can extend the points, मतलब पॉइंट्स को हेडिंग बनाओ छोटा, अंडरलाइन, और उसको एक्सप्लेन कर दो। सी सी देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द गुड आंसर। एक होता है कि यू नो 10 पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, every point is self explanatory, just write the points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and write the points, it is self explanatory, 150 मार्क्स हो गया, डन। अब वो क्वेश्चन 250 मार्क्स का हो गया। नाउ 250 में भी आपको 10 ही पॉइंट पता है, अब आपको लगता है कि थोड़ा और लिख लें, सो एक पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया, दो लाइन लिख दी, वन लाइन, देन अनदर पॉइंट, वन सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुआ, 150 मार्क, 150 वर्ड्स के लिए 250 में आपने एक्सप्लेन कर दिया, so that you actually fill the pages, complete the necessary words, draw the diagrams, whatever। and जबरदस्ती डायग्राम नहीं आ रहा है तो नहीं करना है, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट। ज्योग्राफी IR may require diagrams but not in every question, even history if you think some diagram can be drawn, you can draw, but depends, okay, because time भी कम होता है। ठीक है, अब ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना, अब मैं वो बता रहा हूँ उनके लिए जिनका पेपर छूट जाता है, अभी तक छूट जाता है, आई ऑलरेडी डिस्कस मेनी थिंग्स कि भाई ऐसे करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मोस्टली नहीं छूटता है। तो इन केस तब भी छूट रहा है, सपोज देयर इज वन स्टूडेंट इन माय बैच 2 3 years ago, 3 years 4 years, है ना, उसको कुछ भी बता दे तो उसका क्वेश्चन तब भी छूट जाता था, बिकॉज शी थोड़ा स्लो लिखती थी एंड ऑल पॉइंट्स एंड ऑल। तो आई टोल्ड कि व्हाट यू डू, यू इन केस यू हैव दिस प्रॉब्लम, पेपर छूट ही जाता है, चाहे कुछ कर ले तो 3 4 5 क्वेश्चन छूटते छूटते हैं, सो व्हाट यू डू, यू कुछ एक का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखिए, लास्ट में आप छोड़ दीजिए, डोंट राइट इंट्रोडक्शन, कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली राइट द हेडिंग व्हाट इज आस्क्ड, एक्सप्लेन इट। So you will save 1 1 2 2 minutes in introduction conclusion, and maybe 4 5 questions you will see, you will save some 10 15 minutes, and then you can complete your whole paper। तो ये भी आप कर सकते हैं फॉर दोज क्वेश्चंस इन द एंड, इफ यू फील दैट टाइम इज लेस, एंड इफ आई राइट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, माय मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्रोमाइज हो जाएंगे, और मे बी सम क्वेश्चंस आई विल लीव और छूट सकते हैं, और मैं भी कुछ कम लिख पाऊंगा। सो यू जस्ट फोकस ऑन द बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द आंसर, जस्ट जो पूछा है एग्जैक्टली एड्रेस करो, पूरा एक्सप्लेन कर दो, पूरे पेज भर दो, यू गेट मार्क्स। देखो ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को यूपीएससी ने कभी नहीं बोला कि लिखना है, ये कोचिंग का ही दिया हुआ चीज है। ठीक है, कोचिंग हैज टोल्ड कि राइट द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, एंड दे आर एक्चुअली गिविंग यू मार्क्स ऑन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आल्सो, बट आई विल टेल यू दैट मार्क्स तो बॉडी का है, marks is always for what is asked, not what you know extra। I told already, introduction conclusion is just to introduce the question and to conclude the question, but whatever, if your body is bogus, nobody is going to give you marks। बॉडी का बोगस है, मार्क्स कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, घर में पढ़ना। अगर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बोगस है और बॉडी इज एफिशिएंट, वेल 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 रिटन आंसर, अंडरस्टूड आंसर, डेफिनेटली विल गेट मार्क्स। ठीक है, तो सारा खेल बॉडी का है, पर लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन के भी नंबर है, कंक्लूजन नहीं नंबर,
In GS 1, 2, 3, 4, there is no marks for the introduction conclusion. I'm telling you. The question, the marks किसके हैं? आंसर के हैं. आंसर इज व्हाट? द बॉडी. बट अच्छा लिखने के लिए प्रेजेंटेशन की वैल्यू होती है, कंटेंट की थोड़ी बहुत वैल्यू है. तो यू जस्ट इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, देन कंक्लूड द क्वेश्चन. ये आप करते हैं, बट इसका प्रैक्टिकली वेरी लेस उसका कुछ मतलब है. सो देयरफॉर इन द एंड ये आप स्किप कर सकते हैं इफ यू थिंक दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस छूटने वाला है. ठीक है, डोंट गो फॉर द कोचिंग रिव्यू एंड ऑल. वो आपसे बोलेंगे इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है. राइट गुड इंट्रोडक्शन, राइट गुड कलर. व्हाट इज दिस गुड एंड गुड और बैड? आप ये बताइए कैसे गुड और कैसे बैड, ये नहीं बता पाता कोई. क्यों? बिकॉज सी फोकस सारा जो यूपीएससी का है वो बॉडी का है, क्योंकि आपने क्या लिखा है, यू हैव व्हाट एक्चुअली यू हैव रिटन. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट आल्सो कि बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको, दे विल गिव यू द रेडीमेड टेम्पलेट फॉर द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन. तो ये भी क्वेश्चन होगा, सर कैन वी रिमेंबर ऑल दोस? मेरे पास 500 टेम्पलेट है ना. अब राहुल से पूछना कि क्या उसने ऐसे टेम्पलेट पढ़ा था, कितने क्वेश्चन रटा था टेम्पलेट से. सी आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू टेक द मिनिमम थिंग, 100 इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट है मेरे पास, 100 कंक्लूजन का है, 200 टेम्पलेट्स. नाउ आई विल रिमेंबर. तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको रट्टा मारूंगा. मैं रट लिया, ठीक है. नाउ मैं एग्जाम में गया. अब जो मैंने रटा है, हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मैच विद द क्वेश्चन आस्क्ड, कि भाई जो मैं रट के गया हूँ मे बी वो सिमिलर या उसमें हिट करे. ठीक है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी, 10 15 20% में क्वेश्चन विल मैच फॉर एग्जांपल. सो नाउ यू आर गोइंग टू राइट इट. अब हाउ मेनी टेम्पलेट्स यू विल रिकॉल एंड यू राइट व्हाट यू रिमेंबर्ड, कितना याद रहेगा, कितना लिख पाओगे. फिर टाइम कांस्टेंट, वर्ड्स कांस्टेंट. नाउ कितना क्या गारंटी है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बढ़िया हो गया, बॉडी का तो बॉडी मालूम ही नहीं है, बॉडी का तो पता ही नहीं है. नॉट वेरी श्योर टू राइट वेरी गुड बॉडी, है ना. यू आर नॉट वेरी श्योर टू राइट द एग्जैक्ट आंसर व्हाट इज आस्क्ड. आप कंफ्यूजन में लिख लोगे, बोगस आंसर लिखोगे. तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बढ़िया लेके क्या कर लोगे? वो तो एग्जामिनर तो एक्सपोज कर ही देगा आपको, देखिए ना कुछ दिखा ही नहीं है, घुसा भरा है आंसर में, कैसे नंबर मिलेगा? गॉट माय पॉइंट ना. तो ये सब फालतू बातें हैं. फोकस ऑन द बॉडी. अगर आपकी बॉडी अच्छी तैयार है, कैसे तैयार है? यू हैव ए कमांड ऑफ द कंटेंट. आपने पूरा रट के गए हैं, जो भी आपके इश्यूज है विजन के वगैरह, आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है. नाउ यू आर गोइंग टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन. तो डेफिनेटली आपको पूरा टॉपिक पता है. तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, व्हाटएवर दे विल आस्क यू, बिकॉज़ you have the command of the body, you will extract from the body and utilize the keywords of the question and write the introduction. And then the concluding part also you will extract from the analysis part and the ending part of that question, and you write in the conclusion. अपने आप अच्छा बना लेंगे आप, बहुत अच्छा बना लेंगे, कोई हेडेक ही नहीं है. Why to remember introduction and conclusion? Remember the body, remember the content, remember the issue, है ना, जो टॉपिक है, इश्यू है, फिर आपको सब लिख लेंगे, एवरीथिंग यू कैन राइट. प्रॉब्लम ये होता है कि यू आर फोकस ऑन इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है सर, कंक्लूजन कैसे लिखना है. अरे भाई बॉडी आती है कि नहीं आती है, पहले ये बताओ. बॉडी नहीं आती तो इंट्रोडक्शन क्या कर लोगे? पर मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, सर मैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिख पाता हूँ. इसलिए नहीं लिख पाते हो क्योंकि आपको बॉडी नहीं आती है. आपको अंदर आपको पता ही नहीं क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिख पाओगे? जब अंदर पता हो तभी ना लिख पाओगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन. लेकिन मैक्सिमम केस में यही होता है, नोबडी इज वेरी श्योर अबाउट द बॉडी, बट दे विल आस्क द क्वेरी, सर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में क्या लिखना है? लिखना क्या है? अगर आपको पूरा कंटेंट आता है, क्वेश्चन आता है, यू विल डेफिनेटली एबल टू राइट द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन. बहुत इजी चीज है. वर्ड में पढ़ना यहाँ क्लियर है. तो फोकस इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के पीछे नहीं भागना है. भागना किस पे है? कंटेंट के पीछे, बॉडी के पीछे, कितना याद है, कितना रिकॉल हो रहा है. एंड दैट रिकॉल विल हेल्प यू कि व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन, व्हाट विल बी द कंक्लूजन. ओके, तो बेसिकली द कंटेंट इज द किंग एंड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो सुपरफिशियल चीज है. ठीक है. नाउ बात ही कर लिया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट टू राइट इन द इंट्रोडक्शन, व्हाट टू राइट इन द कंक्लूजन. ठीक है. इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखना चाहिए? जैसे मैं आपके लिए कुछ-कुछ नोट किया हूँ, आप यू कैन राइट डाउन आल्सो कि यू कैन इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं पता आपको, डिफाइन द कीवर्ड्स, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. होता है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. ठीक है. एक ये है, 2 लाइन 1 लाइन. देन थोड़ा और आपको आता है, मे बी यू कैन डू द लिटिल एक्सप्लेनेशन. और वो भी, और आपको डिटेल मालूम है बहुत सारी चीज़ों की, तो यू कैन गो फॉर द बैकग्राउंड. आप उस टॉपिक पे लिखने से पहले उसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं. ठीक है. और भी आपको लगता है कि मुझको अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया, देन यू कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. जो पूछ रहा है आपसे, उसका मीनिंग भी आप इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट.
You can also link the introduction part with the current event. Something which has happened recently can be linked to the can be linked with this question and write in and you can write in the introduction. और भी आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपको नॉलेज है तो डेटा आपको रेडी है, फिगर्स रेडी है, एग्जांपल्स है, यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन. जैसे कुछ पूछ रहा है, यू कैन स्टार्ट द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया लाइक दिस एंड कुछ भी हो सकता है. डिपेंड द क्वेश्चन टू क्वेश्चन. आपको पता है, यू कैन स्टार्ट द डेटा, एग्जांपल्स, फिगर्स आल्सो. फिगर्स मतलब डेटा वगैरह. ठीक है. और भी आपको बहुत अच्छा आता है. मे बी सम एक्चुअली कोट इज हिटिंग इन योर माइंड जब क्वेश्चन पूछा, तो यू कैन स्टार्ट विद द कोट आल्सो, सो दैट कि ये बहुत इनोवेटिव इंट्रोडक्शन होता है कोट से स्टार्ट करना, है ना. बट कोट शुड बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, नॉट पूछा ये है लिख रहे हो उधर वाला कुछ. इट्स नॉट इरेलेवेंट. कोट पे तो नंबर कट जाएंगे आपके, राइट. कि फालतू क्वेश्चन का, ये तो क्वेश्चन को डिबेट कर रहा है. व्हाट माय पॉइंट. तो दिस इज द वे टू एड्रेस द इंट्रोडक्शन. बाकी और भी चीज ले सकते हो, है ना. आपको लगता है कि डेफिनेशन, एग्जांपल्स दोनों मिला जुला के, डेटा फिगर सब मिला के भी ले सकते हो. दिस कैन आल्सो बी डन. कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन क्या लिखना है. you you have written the introduction, body you have written, now you want to conclude. तो conclude क्या कर सकते हैं, you can do the summarize, you can summarize. अब कुछ नहीं पता है, summarize the whole thing and write what is, मतलब exactly क्या करना है. और आपको और ज्यादा पता है, you know more about it, optimism तक ले जाओ. मतलब जैसे ये, जैसे अब चंद्रयान गया, अब वो पहुंचा, मान लिया अभी तो पहुंच गया, लास्ट टाइम नहीं पहुंचा था, तो क्या हुआ था, उसको आप लिख सकते थे उस समय कि फेलियर तो हो गया, बट दिस विल दिस विल हैव ए लर्निंग इन आवर सिस्टम. हम उसको लर्निंग करेंगे, क्यों गलतियां हुई, व्हाट मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मेरा चंद्रयान लैंड नहीं कर पाया, वो नहीं पहुंच पाया, क्या उसमें फेलियर हुआ, व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर. एंड उस लर्निंग के बेसिस पे हम लोग फिर से उस पर काम करेंगे. एंड ये श्योर है, इन द नियर फ्यूचर वी विल मेक आवर रोवर लैंड इन द चंद्र, इन द मून, राइट, ऑन द मून. सो ये क्यों लिखा, ये ऑप्टिमिज्म है. ठीक है. तो यू कैन डू सम ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग आल्सो. ओके. और फ्यूचरिस्टिक आल्सो, मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगी, फ्यूचरिस्टिक हो सकती है. मतलब अभी नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं. मे नॉट बी सो मच ऑप्टिमिस्टिक, बट फ्यूचरिस्टिक कैन बी देयर. ठीक है. ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू मेंशन सम गवर्नमेंट स्कीम्स इन द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन. अब गवर्नमेंट की स्कीम हर फील्ड में है, एवरीवेयर इट इज देयर. इन इकोनॉमिक्स, है ना, इवन इन पॉलिटी, कुछ भी ले लो, सब में कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम यू माइट रिमेंबर. You can use those words, name dropping, just नाम ड्रॉप कर दिया, either in the introduction or in the conclusion. conclusion में थोड़ा सा better होता है. conclusion में जो थोड़ा conclude हो जाएगा, तो वो government schemes का नाम आपने डाल के छोड़ के आगे जैसे करके conclude कर दिया. और you can put some recent happenings also, current as in the introduction, वो भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, right. giving some examples कि भी ऐसे हुआ है. ठीक है. examples डाल सकते हो. maybe you can use the case studies of योजना and कुरुक्षेत्र also, you can use it in the and conclusion part. और कुछ नहीं पता है तो समराइज कर दीजिए. इधर यू सजेस्ट समथिंग और यू समराइज. ठीक है. दिस वे आल्सो यू कैन डू. व्हाट अबाउट द वे फॉरवर्ड. एक नया चीज निकला है आज. पीपल आर गोइंग टू राइट द वे फॉरवर्ड आल्सो. सी, वे फॉरवर्ड का टाइम नहीं मिलेगा आपको, राइट. देयर विल बी ऑलवेज लेसर टाइम फॉर द वे फॉरवर्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. सी, बिकॉज कंक्लूजन एक्चुअली इंक्लूड्स द वे फॉरवर्ड. conclusion क्या है, it's a broader concept, it includes the way forward. But in essay you can have conclusion different, way forward different. essay में दोनों, because you have so much to write, so you can differentiate between the way forward and the conclusion. आप दोनों separately अच्छा अच्छा लिख सकते हैं, एक एक पेज का, दो दो पेज का भी. but in this 15 mark 10 mark hardly you can differentiate between the conclusion and the way forward. तो basically merge कर देना बेहतर है. but actually way forward में होता क्या है, let's see what is the other way forward. like there will be suggestions कि क्या करना है, और what is the future course of action. way forward means next क्या है, what is way forward. so that will be the future course of action, or maybe some action taken consequently. कुछ हो गया है तो उसके बाद क्या एक्शन आपने लिया immediately, वो भी आप लिख सकते हैं. उस तरह से basically part of the conclusion itself ना, in general. okay. so this you can write down in the introduction conclusion part. now coming to one thing, कि एक और चीज का ध्यान रखना है कि देयर यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द क्वेश्चन. डिविएट कैसे डिविएशन होता है, आप डिविएशन में आप लिखते गए, मे बी जो मिस हो गया, समथिंग सम कीवर्ड यू हैव मिस्ड इट, दैट दे आस्क यू वेयर एंड व्हाट, सो मे बी यू मिस्ड वेयर, व्हाट लिख दिए. सो ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू एंटर ईच एंड एवरी सब पार्ट
है ना? यू कैन अंडरलाइन द कीवर्ड्स और जो भी पूछा है यू कैन एड्रेस इट. सो फॉर दैट यू हैव टू लुक इनटू द क्वेश्चन, बीच बीच में क्वेश्चन देखते रहना. यू हैव टू जस्ट सी द क्वेश्चन, आंसर, देन सी क्वेश्चन. यू हैव टू गो एंड in between also you have to see the questions, है ना, 2-3 times while writing the answer. Especially this is valid in essay paper. Essay में क्या होता है, when you go on writing a long answer type essay, so you will be not looking into the question and again resulting the deviation of the essay totally. तो आप देखेंगे थोड़ी देर में, half an hour में you have moved to some other thing. तो इसलिए keep looking into the question so that you come again to the same lines, deviate नहीं होंगे, right? Understand this and use it in your ऐसे पेपर स्पेशली, क्योंकि डिविएशन ऑफ का जो चांसेस है ऐसे में बहुत ज्यादा होता है. एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल आफ्टर राइटिंग द ऐसे दे विल थिंक, और मैंने डिबेट कर दिया तो मेरा नंबर नहीं आएगा. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट लेस मार्क्स इन ऐसे, most of them actually conclude that either they have written on the wrong topic or they have deviated the essay, right? So deviation now, for that you have to keep looking into the question, है ना, again and again. जैसे जैसे लिखें तो आपको नई चीज पता चलेगा, आपको लिखते रहना, ठीक है. ऑल्सो एक चीज और बता देता हूँ, some of you, most of you want to link the question, मतलब सॉरी लिंक द पैराग्राफ्स, भी पैराग्राफ्स को भी लिंक करना होता है, बोलते हैं ना बहुत सारे, स्पेशली इन द ऐसे पेपर, ऐसे लिंकिंग उसमें तो आप यू कांट राइट द पॉइंट वाइज. सो सो हाउ टू लिंक द various paragraph of the essay. You can use the various words of like conjunction words, like for example further, है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो further, और मे बी फर्दर मोर. एक ही चीज वर्ड नहीं लिखना है, नॉट एवरी वर्ड यू सेम वर्ड यू राइट इन लाइक सारे पैराग्राफ में, अच्छा नहीं लगेगा. It would look good also and it will look like monotonous. So you can use some words like further, furthermore, however, moreover, ठीक है, not only but also, although, okay, and also you can start from the and, next paragraph, and or also, either or, neither nor, like that also you can use. Then also you can, if you want to write some more points, you can write in addition to it, finally, meanwhile, okay, or equally. If you write some more point, equally, this is also important point, like equally, consequently, eventually, okay, gradually, nevertheless, whereas, okay, or you can also start from, next paragraph, to be specific, and to begin with, and then reduction you can have to begin with, subsequently, thereafter, like that. There are so many words, most of the words you know already, that how to use it. You can use such words and connect the paragraphs in the case of essay especially, but in the case of writing the answer also, there also you can connect well by using all those things. Okay, now coming to one more important thing, because nowadays the question are asked in such format. There are two ways the questions are have been asked in the GS 2 and 3, especially, maybe sometimes one also, but 2 and 3 is there. Like the statement will be given, one statement, then full stop, then the question will come. Okay, so the question asked sometimes have a relation with the statement, and sometimes it will not have no relation with the statement, or less relation. That is जो पूछा गया है, जो स्टेटमेंट डाला गया है, that is of no use, कि क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया है. ठीक है, ये आप मोस्ट ऑफ पीपल आर एनकाउंटरिंग दिस, होता है कि नहीं होता है, राइट और रॉन्ग, Yes, sir. होता है ना. यस. सो इसका इसका क्या करना है, ठीक है, इसमें कोचिंग वाले आपको क्या क्या बताएंगे मैं बता देता हूँ. ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना है. ठीक है, सबसे सीधा सरल एकदम. कोचिंग बिल्कुल बिल्कुल मैकेनिकल चलती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं. वो बस बता दिया आपने, कर दिया, आपको क्या क्या बोलेगा कि स्टेटमेंट जो है उसमें कीवर्ड्स काटता है 3-4 पार्ट में, और उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, हो गया आपका. या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट अलग है और वो अलग है, तो भी इसको ब्रेक कर देना है. सी, ये पार्शियली करेक्ट है, इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जो भी कोचिंग बोला करे ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको देखा करो कि वेदर लॉजिकली इट कैन बी अप्लाइड और नॉट. जबरदस्ती का काम नहीं करना, ठीक है, बिकॉज उसमें उतना, सी सेम चीज करोगे पूरे एक्सपोज हो जाओगे, नंबर एकदम चले जाएंगे. ठीक है, कहाँ पे वो होगा कहाँ नहीं होगा, लेट अस डिस्कस दैट. See, first of all, talk about the statement is given and related question is there. The question is in relation with the statement, yeah, in context with the question. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया. Now it is very clear क्या करना है. So उस क्वेश्चन में ब्रेक कर सकते हो आप स्टेटमेंट को. ठीक है,
In that question, in that thing, you can break the statement. Okay, because what, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, because the question is basically based on the statement. Statement पे based है, तो let's break the statement and starting कर सकते हो, you can at least write in the introduction part. Or if the question is based on the statement and the question is small, statement is big, that means the उस statement में ही उसका आंसर है, उसको explain करते करते, maybe analyze करते करते, right? So then you break the question, that statement, into two three parts and write on each part explaining what is asked. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का एसेंस तो समझना पड़ेगा ना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट पे हमको रहना है, वही मेरा कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाहर नहीं जाना है, राइट? देन यू कैन डू इट वेल, कि देयर यू कैन ब्रेक द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड. दिस इज द थिंग वेयर यू कैन डू. ये कोचिंग वाला फंडा हुआ, ठीक है? अब इसको हर जगह नहीं यूज होगा. अब क्या होगा, जो जो आपका नेक्स्ट लेवल है, स्टेटमेंट विल बी देयर बट क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. तो क्वेश्चन कुछ और ही चल रहा है, ठीक है? अब नाउ द थिंग, सी यू शुड नो द टॉपिक आल्सो ना. अगर वो टॉपिक ही नहीं पता तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखना है. सो मोस्ट इंपोर्टेंट इज द कंटेंट. If you know the content, then only you're going to understand that whether the statement is related with the question or it is not related. Only when you have the knowledge of the content. Okay, how much you have the uh, बीच में क्वेश्चन पूछ ले तो मेरा मेरा फ्लो टूट जाता है. सो आई गिव द टाइम इन द एंड. सो क्लियर कट है, व्हेन यू हैव द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, whether it is related to the question or not, it depends on your knowledge also. If you do not know much, तो आपको मालूम ही चलेगा कि रिलेटेड है कि नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंटेंट शुड बी स्ट्रांग. अब मान लीजिए आपका कंटेंट स्ट्रांग है. नाउ यू आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन in which the statement is there but the question is not related to the statement. अब यहां क्या करना है, ठीक है? इधर you can write the introduction based on the keywords of the statement. That means कीवर्ड आप उसको आप ब्रेक कर सकते हो, इसको स्टेटमेंट को, या कीवर्ड्स उसको उठा लीजिए एंड जस्ट राइट द इंट्रोडक्शन. पर बॉडी ऑफ द आंसर में ब्रेक करके नहीं लिखना है. बॉडी ऑफ द आंसर शुड एड्रेस द क्वेश्चन आस्क्ड. क्वेश्चन कहीं और पूछ रहे तो उसी को बताना है. ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दिखाने को आपने इंट्रोडक्शन दिखा दिया, दैट्स ऑल. बट इन द बॉडी पार्ट you have to talk about the question. You have to understand the essence of the question and talk about the question only, right? ये क्लियर है ना? इसको मैं आपको और बोले तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोई अच्छे एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है? ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा जो लोग मेंस लिख चुके हैं, एंड जिसको लिखना है वो भी क्लियर हो रहा होगा जो भी टेस्ट लिख रहे होंगे. इफ इट इज नॉट रिलेटेड विद द क्वेश्चन, तब भी क्वेश्चन को एड्रेस करना है. पहले वाले केस में स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन और आपने क्वेश्चन को एड्रेस किया है बाय ब्रेकिंग द स्टेटमेंट. You have addressed the question only. Here also we are addressing the question, but breaking जो करना था वो इंट्रोडक्शन में दिखाने के लिए कर दिया है कि यस हमने ब्रेक करके रख दिया है, लेकिन इंट्रोडक्शन में मे बी आपको नहीं करना तब भी मत करिए, कोई डर नहीं. उसका नंबर सिर्फ क्वेश्चन का है. इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली यू विल गेट द मार्क्स. सो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है. मे बी यू कैन यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट कोई चीज का, बट मेजरली इट इज द क्वेश्चन इटसेल्फ. ये क्लियर है कि नहीं? यस सर. ठीक है, तो यही मैं पूछ रहा था. तो ये सब चीजें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज दिस थिंग, है ना? एंड ओके, व्हाट आर द, नाउ वी कैन, your topic khatam, now we see the question. How much time need to be given to such process? I am doing it predicting. See, I have already discussed this कि टाइम तो कुछ नहीं लगता है इसमें. when you know the already, see टाइम का जो फाउंडेशन है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू कि आपको टाइम, आपने अगर प्रायोरिटाइज कर लिया क्वेश्चन को, देन टाइम का जो टाइम जाता है ना सोचने में, वो खत्म हो जाएगा. यू फोकस ऑन द नोन क्वेश्चन फर्स्ट. आपको आता है तुरंत आपने कर लिया, नो टाइम इन थिंकिंग. थिंकिंग का तो वैसे भी टाइम नहीं है, लास्ट तक नहीं है. देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड आवर में जो लेसन ऑन क्वेश्चन है. तो आपको आता है जो आपको आता है आपने लिख दिया. अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, कम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सेकंड आवर में बी मेनली इन द थर्ड आवर लेसन ऑन क्वेश्चन. तो यू कैन, इफ यू वांट टू फिल द पेजेस, पर टाइम भी कम है उसमें, एंड यू डोंट हैव मच कंटेंट एंड वर्ड्स आल्सो. इन दोस क्वेश्चंस यू मे यूज डायग्राम्स. डायग्राम बना दीजिए, पेज भर जाएगा. But always ensure that the diagram should be relevant first thing, and diagrams should come after the introduction, but but before conclusion. ऐसा ना हो conclusion
नहीं पहले डायग्राम बना दिया उसके इंट्रोडक्शन लिखा, दिस इज नॉट द राइट वे, राइट? सो यू कैन डू व्हाट, introduce the topic, then draw diagram, maybe if you write in the body also, ठीक है, you write in the body, but conclusion के पहले पहले diagram होना चाहिए, conclusion के बाद नहीं होना चाहिए, because question is over, then what is your diagram? Conclusion, diagram should be between the introduction and conclusion only, not outside, ये बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है? Now, in how many questions we can write big conclusion that includes way forward? See, Ritik, this depends totally on your knowledge. See, if you know much about the question, already I've discussed कि first of all 10 to 15% of the जो content होगा या page होगा वही introduction conclusion में जाएगा. But one or two sentences also you can write. But if you're writing a long conclusion, that means the body was not sufficient to explain the answer. You have moved into the conclusion part. Conclusion तो नहीं पूछ रहा, आपको body, आपने जो question पूछा गया है एग्जाम में, that is based, you write the answer in the body itself. Conclusion is the way to end the question. Examples है, summarization है, बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस. If you want to write a long conclusion, then it depends कि आपको कम आता है, तो आप सोच रहे conclusion में ही I will complete the whole paper, तो मैं उसको थोड़ा पेज भर दूंगा. So that is a different way, but conclusion का one or two sentence is sufficient. Okay, Ritik, you got my point or another query? Yes, yes, please Deepak, please ask. अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो. अ, सर Yes. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है क्या? अगर एक्सप्लेन करना है तो मिनिमम वर्ड जैसे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है, फिर किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा एक ब्रीफ हो. अच्छा, मैंने बताया था ना कि इफ इट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन, ठीक है, तब तो ब्रेक कर देना, एक्सप्लेन कर देना, पर क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आप ब्रेक करके उसको, ठीक, क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, इट्स द, उसका जो स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं पूछ रहा है, इट इज नॉट आस्किंग यू द मीनिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस, कुछ नहीं, इट्स क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, इसलिए यू आर ब्रेकिंग द स्टेटमेंट एंड यू आर आंसरिंग द एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, बट द क्वेश्चन विच आर नॉट रिलेटेड विद द स्टेटमेंट, देयर ब्रेकिंग और ये सब तो मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट राइट इन द इंट्रोडक्शन सो दैट इट लगे कि मतलब हो गया है, ठीक है, इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट आल्सो, बट यू हैव टू एड्रेस द आंसर. तो आपने बोला कि उसको मीनिंग उसको एक्सप्लेन, इट इज लाइक सुपरफिशियल लेवल ना, अगर वो कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर दैट पार्ट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन पे आपको रहना है. गॉट माय पॉइंट जी सर. दीपक? एसेंस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सी मेंस में क्या होता है, सी इफ समबडी विल आस्क मी, मैंने जैसे मैंने 4 इंटरव्यू फेस किया है, कोई मुझसे पूछता है सर आपने 4 कैसे फेस कर लिया, क्या रीजन है, कोई दो दो लाइन में बता दें कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जो मैंने बताया वो आप फॉलो करें ना करें, लेकिन दो चीज आपको जरूर फॉलो करनी है, इतना कर लेंगे आपका इंटरव्यू कॉल पक्का है, किसी का भी. क्या क्या है? पहला चीज, क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज वे में आपको अटेंड करना है, बताया कि मतलब सारे क्वेश्चन करने हैं, मतलब छूटेगा नहीं उससे. मोस्ट इंपोर्टेंट की नॉन क्वेश्चन को नहीं छूटना है, अननोन छूटे कोई बात नहीं, नॉन नहीं छूटना है, एंड क्वेश्चन शुड बी अटेंडेड इन द प्रायोरिटाइज वे, मतलब बेस्ट टू वर्स्ट, ये पहला. दूसरा स्टेटमेंट होगा कि सर मेरा क्वेश्चन को मैंने स्पेसिफिक वे में एड्रेस किया, आई एड्रेस द क्वेश्चन इन ए स्पेसिफिक वे, स्पेशलाइज्ड आंसर लिखा है मैंने, जनरल आंसर नहीं लिखा, स्पेशलाइज्ड आंसर, यही दो ही है, प्रायोरिटाइजिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द स्पेशलाइज्ड आंसर, ये दोनों आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. यही दो तो नहीं कर पाते सब, क्वेश्चन छूट जाता है, लाइन से करते हैं, कुछ और क्वेश्चन जाते चले गए, प्रायोरिटाइज नहीं किए, अंतर भी नहीं किए, स्पेशलाइज आंसर नहीं लिखे, जनरल आंसर लिख दिया, मतलब इनको आता नहीं है, हल्का हल्का आता है, तो जनरल आंसर लिख दिया, नंबर नहीं मिले, यही यही पूरा खेल है. इतना मैंने डिटेल बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ जो मेरा क्या बोलते हैं वेबिनार नहीं कर रहा है, वो बस ये 2 पॉइंट लेके भी लिख सकता है, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को एसेंस को नहीं समझे आप एंड यू राइटिंग वेग आंसर, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा. आपको बता दूं कि कौन गलती करता है ऐसी, जो फ्रेशर होता है ना, जो नए नए मेंस लिख रहा है, मोस्टली अगर वो प्रॉपर मेंटरशिप से नहीं गया है, वो बस रट के आ गया और उसको लिखना है कि मैं भाई वो मेंस से पहुंच गया, तो व्हाट ही विल डू, दैट क्वेश्चन तो यूपीएससी से पूछता है घुमा फिरा के, टॉपिक वही रहेगा, वही टॉपिक उसमें है, विजन में है, वही फोरम सब जगह वही टॉपिक है, पर वो टॉपिक के अंदर घुस के कोई एक पार्ट पूछता है यूपीएससी, कोई एनालिसिस करता है. बट एक जनरल कैंडिडेट होगा, फ्रेश कैंडिडेट होगा, फ्रेशर, ही माइट नॉट नो, वो उसको कुछ ज्यादा, वो टॉपिक ही पूरा एक्सप्लेन कर देगा, सब टॉपिक में लेके आ जाएगा. अब यूपीएससी खोजना है कि भाई कौन सा हमने पूछा है वो कहाँ लिखा है, ठीक है, तो ऐसे लोग का क्या है, बेसिकली ही रोट द जनरलाइज्ड आंसर, ही रोट द जनरलाइज्ड आंसर. स्पेशलाइज्ड आंसर कौन लिखेगा, जो 2-3 बार इंटरव्यू पहुंच चुका है, जो समझदार हो गया है, या जो पहली मेंटरिंग करके आया, उसको पता है कि मुझे क्वेश्चन में से वो छांटना है, उस टॉपिक में से कि क्या पूछा है, मुझे वही लिखना है, तो उतना ही जो लिखेगा ना जो पूछा गया है उसी को नंबर मिलेगा. ये मैं आपको, अगर आपको लगता है कि आप
तब लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है? जब मैंने आपको जॉइन किया था, कुछ लोग मुझे जब पूछते समय सर आप क्या बताएँगे वेबिनार में? तो मैं यही बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या मिस्टेक आप अनकॉन्शियसली, अननोइंगली करते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ सारा, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली करते हैं। हाउ टू इंक्रीज़ योर पोटेंशियल टू स्कोर मोर मार्क्स विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज। आपको टॉपिक पूरा पता है, यू नो द होल टॉपिक। आपको ये नहीं पता है कि यार मेरे को सिर्फ इतने को लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। आप पूरा टॉपिक लिख के आ गए। तो ये आपकी गलती होगी अननोइंगली। ठीक है? ये जनरली फ्रेशर के साथ होती है। या जो ज़्यादा उसको नहीं पता, हर बार मेज़ लिख रहा है पर मेज़ निकल नहीं रहा है। तो ये वन ऑफ बहुत सारे रीज़न में दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि दिस इज़ रीज़न कि ही इज़ नॉट राइटिंग द स्पेशलाइज्ड आंसर एज़ पर द क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन से डिविएट हुए, नंबर गए। ठीक है? क्यों किसी है? देखिए, उसका क्या कारण है? व्हाई इट इज़ सो? ऐसा क्यों वो लोग कहते हैं कि यार मुझको जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली एड्रेस करेगा कल, उसी को आईएएस बनाएँगे। ऐसा इंटरव्यू में भी होता है कि आप बीटिंग अराउंड द बुश करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप टू द पॉइंट नहीं बताया, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है। द रीज़न इज़ दिस, वेरी सिंपल रीज़न कि द ये जो जॉब आप करने आए हैं ना, पब्लिक सर्विस, दिस इज़ बेसिकली आपको बहुत कम टाइम मिलता है। एज़ अ कलेक्टर आप सुबह से शाम तक सिर्फ मीटिंग करते हैं। आप मीटिंग करेंगे, मीटिंग को हेड करेंगे, लोगों को बताएँगे क्या करना है, फिर उसके बाद अगली मीटिंग है, फिर कोई फ़ोन आएगा आपको सचिवालय से, कोई वहाँ की मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर यहाँ तो टोटल यू आर अ पर्सन हू इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, है ना, होल डिस्ट्रिक्ट एंड द, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, जो कि रूल करता है कैपिटल से, ठीक है? उसके अब लिंक हैं। सो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कहानी पूरी लिखो और कहानी बताओ, आप किसी को भेजो काम करने को, 2 लाइन में बताओगे ये करके आना। उसी तरह आपको ऊपर से बताया जाएगा कि आपको ये करना है और आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा तब जल्दी इसको ग्रास्प करोगे और जल्दी इंप्लीमेंट करोगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है तो वीक इंप्लीमेंटेशन रहेगा। ठीक है? वीक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा या फिर नहीं होगा या फिर गलतियाँ होंगी। ज़्यादा गलतियाँ होंगी तो आपको हटा दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सचिवालय भेज दिया जाएगा कि आप उस लायक नहीं हैं। इसीलिए बेसिकली एज़ ए कलेक्टर और आईपीएस और एज़ सिविल सर्वेंट अब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत क्लियर हो, इसीलिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिखाया जाता है कि वो क्लैरिटी आपके क्वेश्चन में झलक रही है कि नहीं झलक रही है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने टॉपिक नहीं पूछा है, मैं उस टॉपिक से ये पार्ट पूछा है। और वैसे इंटरव्यू में भी दे विल आस्क यू एक स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक चीज़। ठीक है? तो ये बात आपको, ये वही, तो इसमें वही लड़का निकलेगा जिसको पकड़ है, टॉपिक की, उसमें जो स्पेशलाइज़्ड चीज़ है उसकी पकड़ है। सो दिस इज़ द वे दे आर एक्चुअली, बोलते हैं ना, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से वो लोग लेते हैं सिलेक्शन और वहाँ कुछ और करना होता है। बिल्कुल सही बात है। पर वो इससे चेक करते हैं कि हाउ मच यू आर शार्प, आप हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना ही पार्ट मेरा काम का है। तो इतने ही, और क्योंकि यू आर द पर्सन हु विल कन्वे टू योर सबऑर्डिनेट्स व्हाट टू डू इन केस ऑफ फ्लड, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनी सिचुएशन, या जनरली रोज जितना काम रहता है, मेरे को भी बहुत सारा काम रहता है, तो स्पेसिफिकली वही चीज बताना होता है जो करना होता है, इंप्लीमेंट कराइए तुरंत, नेक्स्ट नेक्स्ट काम आ जाता है। ठीक है? तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड देयरफॉर दे चेक इट इन योर आंसर इन यूपीएससी। ये मेन रीजन है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन दिस आल्सो एक्चुअली हेल्प यू टू, यू नो, बिल्ड योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है? और कोई क्वेरी? आज के लिए थोड़ा यही रखेंगे मोटा-मोटी, देन वी विल प्रोसीड टू द एसे वाला। एसे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ यू विल अटेंड। उसका उसका वीडियो नहीं दूँगा मैं। तो वीडियो देने की वजह से मोस्ट ऑफ पीपल सब गायब रहते हैं। ठीक है? अब बताइए, एनी क्वेरी? एंड ऑल्सो आई विल टेल यू, जिसको जो डाउट है, प्रॉब्लम है, जस्ट गेट बैक टू मी, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। इवन दोज हु आर ज्वाइंड नॉट फ्रॉम माय साइड, ऑलरेडी वो आईएएस हब की तरफ से ज्वाइन करे हैं, तो दे वांट टू कनेक्ट टू मी, डेफिनिटली कैन कनेक्ट मी, मैसेज मी, व्हाट्सएप कर सकते हो, बात कर सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम है इंडिविजुअल लेवल पे, डोंट वरी, गेट बैक टू मी, आई डिस्कस। नहीं तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी बिटवीन 12 टू 2, 12 से 2 के बीच में। आई एम ओनली इन द ट्रैवल, तो आप 2 घंटे में ट्रैवलिंग का रहता है, आप मुझे कॉल कर लो 12 से 2 एनी डे, एनी वर्किंग डे। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपका पूरा जो है ना, आधा-आधा घंटे के घंटे में बात कर सकता हूँ उसमें। और वैसे भी आपको बात करना है तो 6 से लेकर 10 बजे तक, या 7 से लेकर, नॉट 10 नहीं, 7 से लेकर 12 बजे तक यू कैन कॉल मी, 11 बजे तक भी। ठीक है? आई एम देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज, डोंट वरी ऑन दिस। इंडिया भाई जो सीएमपी प्रोग्राम है, दैट इज़, although I have taken this time, we have, you know, doing conducting on the platform of ISF, पर it has been taken by me only, और टोटली हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है? मेरी टीम के साथ। तो इसमें कोई भी आपको संशय है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है? अभी तो मैं आपको थोड़ा बहुत लेक्चर दे रहा हूँ। धीरे-धीरे आपका लास्ट मंथ में आपको बहुत सारे तरीका बताऊँगा कि आपको क्या करना है लास्ट मंथ में।
आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या-क्या और करना है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनिटली योर मार्क्स विल इंक्रीज़। जो-जो लड़के अच्छे-अच्छे नंबर ला रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि वो सारी बात मेरी वेबिनार की सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? ऑब्वियसली पढ़ना तो होगा ही। ठीक है? एनी अदर क्वेरी? यस गजानन। सर मैंने फिजिक्स का पहला टेस्ट लिखा था तो मतलब उसमें सेक्शन एक ही क्वेश्चन थे, केस स्टडीज नहीं थे, मतलब ऐसा पैटर्न मतलब क्यों बना है? फिर से बताइए, कम अगेन। फिजिक्स का जो पहला टेस्ट है ना, उसमें 25 क्वेश्चन थे, मतलब 10 मार्कर वाले, उसमें केस हुँ, स्टडीज नहीं था, तो मतलब ऐसे पैटर्न का मतलब क्या रीजन है, ये जानना था। किसका रीज़न है? ऐसा पैटर्न क्यों दिखा है, मतलब पूरे टेस्ट का, पूरे सेक्शन ए वाले क्वेश्चन थे उसमें। उसको कैसे करना है स्ट्रेटजी? नहीं नहीं, मतलब ऐसे पेपर क्यों बना है, मतलब ऐसे पूछ रहा था, मतलब केस स्टडीज नहीं थी उसमें। अच्छा ऐसे क्यों बना है पेपर? अरे वो बेसिकली हाँ बेसिकली सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है। ऐसा पेपर नहीं आएगा ना सेक्शन ए या सेक्शन बी के बीच में होगा, है ना? हाँ सर। हाँ 7 से 12 नहीं वो रात में, है ना? रात में 7 से 12 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हो और दिन में यू कैन कॉल बाय 12 टू 2 12 से 2 के बीच में और कभी ऐसे भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन मैसेज मी, डिस्कस विद मी, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज भी आप कर लोगे तो मैं मौका देके आपको टाइम दे दूँगा, कॉल कॉल आप कर सकते हैं। उसका कोई इश्यू नहीं है। विदिन 24 आवर्स योर ऑल क्वेरी विल बी रिज़ॉल्व्ड। गजानन एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज़ बेसिकली वो सेक्शनल टेस्ट है एंड सेक्शनल टेस्ट में पूरा पूछा जाता है 300 नंबर का। ये इसलिए ऐसा है, पर एक्चुअल में आपको 2 पार्ट में मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, डोंट वरी ऑन दिस, ठीक है? ओके सर। आपको बस उसको कर लेना है, फीडबैक ले लेना है, वन टू वन कर लेना है सारा, है ना? सर एनी अदर वो क्वेरी? कब तक मिल जाएगा इवैल्यूएशन करके? आज कब दिया आपने? सर मंडे को दिया था। अच्छा मैं देख लेता हूँ। ओके सर। एनी अदर क्वेरी? नंबर लिख देता हूँ मैं, दिस इज माय नंबर एंड यू कैन आल्सो मैसेज मी इवन इन माय टेलीग्राम आईडी आल्सो, इंडिया भाई। और भी जो भी आपको मदद चाहिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट एसे आल्सो, सो उसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको टिप्स पता चलेंगे, बहुत सारे एरर्स यू माइट हैव बीन डूइंग इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स वो भी आपको पता चलेंगे। तो यूटिलाइज़ दोस्त थे। इसके दाम सर मुझे वो ज्योग्राफी के लिए एक सोर्स जानना था कि जो मतलब इंडस्ट्रियल के लोकेशन फैक्टर्स होते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पे जो मिनरल के पूछते हैं, मतलब कि लोकेशन वो होते हैं, उसका सोर्स कहाँ से कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल वाला हाँ इंडस्ट्रियल वाला। बहुत सारी कोचिंग के नोट्स हैं, मुन्नाल सर के नोट्स हैं, यू कैन गो फ्रॉम द मतलब इंटरनेट से मिल जाएँगे मुन्नाल सर के, वो कर सकते हैं और बहुत सारी कोचिंग के भी निकले हुए हैं, विज़न वगैरह के ओके भी हैं। सर। हाँ, उससे हो सकता है। ओके सर। 22 में हाँ जीएस थे लॉन्ग क्वेश्चन हाउ टू इन सब पार्ट्स सी वही मैंने बताया ना यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन का एसेंस क्लियर है फिर देन यू सी द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मींस द स्टेटमेंट्स फिर आपको क्लियर है कि स्टेटमेंट पे बेस्ड है तो देन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट अगर कॉन्टेक्स्ट अलग है स्टेटमेंट क्वेश्चन अलग है देन फॉलो द क्वेश्चन ठीक है स्टेटमेंट आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो देन यू मूव टू द ब्रेक द स्टेटमेंट कीवर्ड लिख दो थोड़ा एक आध पैराग्राफ जस्ट बस उतना ही पर एक्चुअली एड्रेस द क्वेश्चन यही इसका आंसर है ठीक है बट डिपेंड करता है कि हाउ मच यू नो उसके आधार पे आप इसको कर पाओगे राइट सर हेलो। यस ऋतिक हाँ, सर उसमें जो स्टेटमेंट पूछते तो स्टेटमेंट को कितना एड्रेस करना है हमें कितने मतलब कितना लेंथ में एड्रेस करना है? नहीं ऐसा नहीं है मैंने बताया था ना अगर आपका नोन क्वेश्चन है मतलब स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन देन बट क्वेश्चन एड्रेस करना है स्टेटमेंट को तोड़ना वो तो सब बोलता है लेकिन तोड़ना डिपेंड्स कि टूट के एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मैं एक दिन एग्जांपल से भी ले लूंगा पर इज इट एक्चुअली ब्रेकिंग द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या है पहले वो समझना है क्वेश्चन का मान लीजिए 3 पार्ट है और तीनों पार्ट स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कॉमा लगा के बहुत क्लियर है कि स्टेटमेंट का ही कोई हमको एक्सप्लेन करना उसका सब पार्ट करके उसको एक्चुअल क्वेश्चन को बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है ठीक है अगर क्वेश्चन है स्टेटमेंट कुछ और है तो स्टेटमेंट जस्ट फॉर मतलब से कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख दिया
बट एक्चुअली क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन, ओके राइट, बहुत सर, क्लियर है। वो नक्सलिज्म हम्म, नक्सलिज्म पे क्वेश्चन था ना, तो उसमें स्टेटमेंट दिया था सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू, बट क्वेश्चन तो इमर्जिंग इश्यूज एंड स्ट्रेटेजी पूछा था, ऐसा था तो। तो उसी को करना है, इमर्जिंग इश्यूज हम्म स्ट्रेटजी को करना है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन मेजरली आपको यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप उस पे उस कॉन्टेक्स्ट पे रहोगे जो स्टेटमेंट पे, तो क्वेश्चन तो बहुत ओपन एंडेड है ना, मेनी थिंग्स यू कैन राइट, हम्म पर वहां स्टेटमेंट ने क्लोज कर दिया कि एक ही लाइन लिख के नहीं, स्टेट उसको तो यूज करना ही है, बट यू टू फाइंड द हम्म अदर एंड इम्प्लीमेंट द आंसर, ठीक है, सर, मतलब इसी ऐसा तो नहीं है कि हम्म, जी सर, हाफ इसी को पेज में हमें जो स्टेटमेंट को इसी एक्सप्लेन करना है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल, और फिर बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना है। क्या है, क्वेश्चन क्या है, सेंड मी द क्वेश्चन, कुछ आइडिया याद है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हाँ सर, क्या है? नक्सलिज्म is a social, economic, and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. हम्म, In this context, discuss the emerging issues and a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. अब देखिए इसने बता दिया है कि मल्टी लेयर्ड मल्टी मल्टी स्ट्रेटेजिक, सो बेसिकली मल्टी प्रोंग अप्रोच बता रहा है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक की बात हो रही है, ठीक है, तो मल्टी प्रोंग में बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल पुलिस एक्शन, राइट, डेवलपमेंटल, राइट, लेकिन लेकिन Right, स्टेटमेंट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक का है, राइट, right, तो सोशियो इकोनॉमिक को तो आपको डेफिनेटली करना है, डिटेल में okay, करना है, राइट, पर अदर अदर ऑल्सो यू टू एक्सप्लेन, अदर जो डायमेंशन है उसको भी एक्सप्लेन कर okay. देना, बेस्ट उसे रहेगा। क्वेश्चन लिख के ही समझ में आएगा ठीक है सर। हाँ, क्वेश्चन लिख के समझाएगा, हम्म, राइट, बहुत क्लियर है, राइट सर। सोशियो इकोनॉमिक भी एक पार्ट है डेवलपमेंट का, सोशल सोशल स्टेटस उनका इंप्रूव करना है, इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करना है, उसके अलावा पॉलिटिकल भी है ना, फिर आपका उनका क्या डेवलपमेंटल का लेवल भी है, राइट, और बहुत सारी चीजें पुलिस एक्शन भी है, तो ये सब चीजें तभी नक्सलिज्म आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो बट बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक को तो करना ही है, करना है, और थोड़ा और जो पार्ट है ये बेसिकली रिलेटेड विद द क्वेश्चन है, पर थोड़े और डायमेंशन के साथ, टोटली राइट टोटली नहीं है, राइट, राइट सर। हाँ, राइट, ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, पर क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, कोचिंगों में भटक जाते हैं, वो पूरा यही दो ही पॉइंट को लेकर सोशियो इकोनॉमिक को पूरा पूरा आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कोई और जो लड़का होगा जिसने सोशियो इकोनॉमिक तो लिया ही है, और उसने पुलिस एक्शन भी लिया है, पॉलिटिकल भी लिया है, और भी जो भी क्या डेवलपमेंटल इश्यूज है वो भी लिया है, कोई नया नया स्ट्रेटजी आया हुआ है ना, अभी गवर्नमेंट के थ्रू उसको भी लिया है, समाधान भी रखा है, इतना सब रखेगा तो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, किसको मिलेगा जो सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहा है, ऑब्वियसली उसको मिलेगा जिसने थोड़ा और डायमेंशन भी लिखा है, लेकिन टॉपिक पे तो है ना, टॉपिक के बाहर तो नहीं डिवेट हुआ है, टॉपिक पे ही है, नक्सलिज्म की बात कर रहा है, नक्सलिज्म के कर्व की बात कर रहा है, इसीलिए उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, क्लियर है ना, तो बेसिकली मोर डायमेंशंस, एक चीज और बता देता हूं मैं कि आपको जो भी आंसर लिखना है यूपीएससी में, इट शुड बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो चीज होता है, वर्टिकल मतलब होता है डीपर लेवल पे, और हॉरिजॉन्टल मतलब सुपरफिशियल पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो डीपर लेवल पे नहीं टिक कर रहा है, डीपर लेवल पे तो मान लो जस्ट यू हैव टू मेक वन पॉइंट टू पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन देम इन डेप्थ, ये नहीं होता मीन्स में, जनरली दे विल आस्क यू मल्टी प्रॉन्ग, मतलब बहुत सारे डायमेंशन आपको लिखने हैं, नॉट ए सिंगल डायमेंशन मेंस में, तो ये अप्रोच जो है ना, अप्रोच हॉरिजॉन्टल वो वैलिड है मेंस के लिए, so you have to add more points instead of digging into one or two points deeply and completing the paper, completing that question. Instead of that, you have to write more number of points, generate more number of points, and explain little about each point. ये आपको मार्क्स, ये आपको ज्यादा मार्क्स देगा, ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी, देन विल क्लोज, अगले में मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर ऐसे, हाँ, जीएस शुड बी वाइड ऑप्शनल एंड डेप्थ, राइट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सी जीएस में कोई अगर आपको स्पेसिफिक चीज पूछी है, आपको सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक पूछा है, तब आपको उसी में लिखना पड़ेगा, इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑल्सो, पर तो उसमें भी डायमेंशन बढ़ा देना है, टू इंक्रीज द डायमेंशन, सिर्फ दो ही डायमेंशन को नहीं घुस जाना है, सोशियो इकोनॉमिक में ही डायमेंशन बहुत सारे निकलेंगे ना, अलग अलग पॉइंट्स निकलेंगे, और ऑप्शनल में डेप्थ होती है, ऑप्शनल तो क्वेश्चन डीपर ही पूछता है, सुपरफिशियल भी पूछता है, तो डिपेंड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सी ये जब आप पूरा पढ़ लोगे, जब मेंस लिखने लगोगे ना, तो आपकी माइंड क्लैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ओके, आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू,
Thanks everyone. Thank you, sir.